हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम नर डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper here, class 10th CBSE NCERT social science here. You know that this is an important question paper here. According to question paper, next question arrive here, that is important here. You know that question here analyze the discussion take by the conservative at the Congress of William in the year 1815. That's important here. There are conservatives at the Congress of Vienna in their year 1815. The representative of fourth great European power, British, Russia and Austria, who had collectively defected of Napoleon. You know that there is European power here of Britain, Russia, Prussia and Austria. There is a defected by the Napoleon. Meet at William to be draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Mettenheim, and the result was a Treaty of William of 1815. That's important. Its object was to be undo the changes that had come about in the Europe during the Napoleonic War and to restore there is a monarchy that has been to the overthrown by the Napoleons and create a new conservative order in Europe. You know that's important. Its object was to be undo to change that had to come about in the European during to the Napoleonic War and to be restored there is a monarchy that has been to the overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. The word was Descenti deposed during to the French Revolution and was restored to power. French lost their territories it has annexed under to Napoleon. As a series of states were set up on the boundaries of France to be prevent it from expansion in the future. Example, Kingdom of Netherlands, which is included Belgium, was set up in the north. Example here, Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Genus was the added to the Padoment in the south, and Prussia was given territories on its western frontier here. And Austria was given control of northern Italy. Austria was given control of northern Italy here. The German Confederation of 39 states
39 states set off by Napoleon was left untouched. You know that's important. The German confederations of 39 states set off by the Napoleon was left untouched here. In the east, Russia was given a part of Poland, while the Prussia given to the possessions of Saxony, and thus the conservative regime set of the 1815 were autocratics, and they did not be tolerate religion and dissent. You know that's important. The conservative regimes set of the 1815, and they covered activity that questioned the legitimacy of autocratic government. That's important here. There's an activity that has a questioning. There's a legitimacy of autocratic government. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है 10वीं कक्षा के लिए जो NCERT CBSE के बच्चे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया हुआ है। NSST के बुक जिनके पास है, जो सिलेबस रखे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि वर्ष 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों द्वारा लिए गए निर्णय का विश्लेषण कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों ने जो निर्णय लिया था उन बातों का हमने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इस पे आंसर पे भी हम नज़र डालें तो देखा जाता है कि 4 महान यूरोपीय शक्तियाँ, 4 महान जो उस समय यूरोपीय शक्ति थी, जिनमें ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। देखिए नेपोलियन को हराना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि नेपोलियन के पास हर तरह के सुविधाजनक बातें थी, और इसको हराने के लिए उस समय 4 महान देशों ने जो है नेपोलियन के खिलाफ यहाँ संघर्ष चलाया था। और वो देश थे ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया, और इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले, यानी देखा जाए तो चारों देश जो हैं यूरोप के एक समझौता करने के लिए जो है सारे के सारे जो है वियना में मिले। यानी देखा जाए तो वियना में एक फैसला किया गया था नेपोलियन के विरुद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक्स मेटरनिच ने की थी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस की मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रियाई का चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। यानी ये काउंसलर थे जिन्होंने सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व किया था, और इसका परिणाम जो था 1815 के वियना संधि थी। यानी देखा जाए तो 1815 में इन चारों देशों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किया था, और इसका जो है चांसलर थे कांग्रेस के मेजबानी करने वाले ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने इसका जो है मेजबानी की थी। यानी इनके ही संरक्षण में ये कार्य संपन्न हुए थे, और इसके उद्देश्य ये थे कि नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तन को प्रवृत्त करना और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाना था। यानी देखा जाए तो इन सभी मीटिंगों का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा जो शहर में बदलाव किए गए थे उन सभी बदलावों को जो है बदलना था। यानी नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को प्रवृत्त करना था और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को फिर से बहाल करने की बात रखी गई थी। यानी चारों देशों ने इसी बातों पर ध्यान दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाने की भी बात इसमें रखी गई। देखा जाए तो बेबनोस राजवंश जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदस्थ थी। यानी देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो थी बेबनोस राजवंश जो थी पदस्थ थी, को सत्ता में बहाल किया जाए। पदस्थ का मतलब होता है पद से मुक्त थी, यानी उस समय वो पद पे नहीं थी, राजवंश नहीं थी, तो उनको दोबारा से जो है उन क्षेत्रों में बहाल करना ये प्रमुख 1815 का जो है गतिविधि थी।
फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन सबसे अपने कब्जा वाले क्षेत्रों को खो दिया था, तो उसको भी पुण्य प्राप्त करने की बात रखी गई थी कि फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन अपने कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पाना था। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्य की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी देखा जाए तो 1815 की बात में ये बात भी रखी गई कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। और इस बात को अगर हम उदाहरण के साथ देखें तो नीदरलैंड का राज्य, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उत्तर में स्थापित किया गया था। यानी नीदरलैंड का राज्य भी इसी समय स्थापित की गई थी, जो बेल्जियम में पहले शामिल था, उत्तर में इसको स्थापित किया गया। जिनेवा के दक्षिण में पीडमोंट में भी जोड़ दिया गया और प्रेशिया को उसकी पश्चिम सीमा पर क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ अछूता रह गया। यानी देखा जाए तो जो नेपोलियन ने कार्य किया था उसको जो यहाँ पर 29 राज्यों का जर्मन परिसंघ में अछूता रखा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रेशिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया। इस प्रकार 1815 में स्थापित रूढ़वादी शासन निरंकुश थे और वो आलोचनाओं और असहमता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने निरंकुश सरकारों को बद्धता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्ज़ाम व्यू से, और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने बहुत कोशिश किया कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी नोट कीजिए और इसका आंसर भी आपके लिए सुविधाजनक यहाँ बनाया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।